آواز ہی نہیں نکلی بچیاں دی اتنی محنت آپ سب نے انجوائے کیا ہے؟ زوردار تالیاں بچوں کے لیے۔ اور جب کبھی ہمارے چرچ میں ایسے ایونٹ ہوتے ہیں تو میں نا ایسے ایونٹ کے لیے نا خود کلام نہیں شیئر کرتا ہوں، کیونکہ مجھ سے زیادہ جو سمجھ رکھنے والا بندہ ہوتا ہے نا میں اس کو بلاتا ہوں۔ تو میرے خیال سے نا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک نئی چیز کو سیکھیں۔ تو ہمارے درمیان میرے استاد، میرے بھائی پاسٹر ہزکیل ہیں۔ ہم چند لمحات کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، زیادہ دیر نہیں تو چند لمحات کے لیے، یعنی کہ بھائی ہزکیل سے میں نے پہلے ریکویسٹ کی، میں نے کہا بھائی اسی کو 10 منٹ کا کلام کرنا ہے کیونکہ نا ٹائم زیادہ ہو جانا ہے، تو اسی ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ بچوں کے گفٹ پڑے ہوئے، آپ یقین کریں میں نے اپنی فیملیز کو کال کر کر کے کہا یار کوئی اور بچے نے لے آؤ، گفٹ بہت ہے ساڑھے کھول، کیونکہ جو تحائف ہے نا وہ بچوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ میں اپنی دکان ختم کر دیتی وہ تو تحفیاں دی لوڑ نہیں ہے گی، بچوں کے لیے یہ سب کی ہے۔ تو میں سامنے دعوت دوں گا اپنے استاد کو، پاسٹر ہزکیل کو۔ شکریہ رفاقت بھائی۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ بہت خوبصورت رہا، ابھی تک جن بچوں نے پرفارم کیا جتنے یہ خوبصورت خود ہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت انہوں نے پرفارم کیا۔ خدا آپ سب کو اچھا طریقہ کار ہے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا۔ ہمیں جو کچھ بہتر سے بہترین سمجھ میں آتا ہے ہم اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کے لیے تو تمام طریقے کار استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ایک طریقہ جو ہم ہمیشہ تھوڑا سا بھول جاتے ہیں، بڑی تعداد میں، سارے تو نہیں ایسے پر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ خوشی اس وقت دوبالا ہو جاتی ہے جب جس کا ایونٹ ہو اس کی مرضی کے مطابق سیلیبریٹ کیا جائے۔ ہم جس سے پیار کرتے ہیں اگر اس کے مطابق اس دن کو، اس تہوار کو، اس لمحہ کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ تو ہم جانتے ہیں یہ کرسمس کا تہوار ہے، اس کے متعلق ہمیں بہت کچھ بتایا جاتا ہے جو کہ سچ ہے۔ تو 10 منٹ مجھے ملے ہیں تو کوشش کروں گا 10 سے 12 منٹ میں ہم انہی میں سے کچھ اہم چیزوں کو دیکھیں۔ دیکھیے کرسمس کا آغاز جس دن باغ عدن کے اندر آدم نے گناہ کیا تھا اسی دن خدا کے پلان میں یہ دن آ چکا تھا، کیونکہ آدم کے گناہ کرنے کی وجہ سے جو خدا کو اور انسان کو لوس ہوا وہ یہ ہے کہ انسان خدا سے جدا ہو گیا، اور یہی اس کی روحانی موت ہے۔ خدا سے جدا ہو جانا اس کی روحانی موت ہے۔ انسان کو جو اس سے جو بڑا نقصان ہوا وہ مشقتوں میں پڑ گیا، وہ درد میں مبتلا ہوا، اور وہ اپنی آسانیوں سے دور ہو گیا۔ وہ باغ عدن جیسا مزہ، باغ عدن جیسا اطمینان کھو چکا تھا، اور سب سے بڑی بات وہ خدا سے علیحدہ ہو چکا تھا۔ اور خدا نے جب باغ عدن میں آدم اور حوا کی عدالت کی، بیٹا چپ کر جاؤ، چپ کریں گے، بس 10 سے 12 منٹ ہے، ذرا توجہ سے۔ یہ کرسمس کے ایونٹ کو ترتیب ہے۔ جب باغ عدن میں گناہ ہوا خدا نے عدالت کی، تو عدالت میں خدا نے پہلی نبوت خود کی، اور اس عدالت میں خدا نے پہلی پیشن گوئی خود کی اس دن کی بابت
पैदाइश की किताब 3 बाब की 15 आयत में खुदा ने फरमाया कि मैं औरत की नस्ल से एक पैदा करूंगा जो दुश्मन के सर को कुचलेगा। और मैं और आप जानते हैं कि औरत की नस्ल से सिर्फ एक और वाहिद हस्ती यीशु मसीह है। मैं और आप तो औरत और मर्द के इरादा से पैदा हुए हैं, उनके मखलूक होने से हम जन्म लेते हैं जो कानून खुदा ने ठहराया सिर्फ वाहिद यीशु ही है। इसलिए हमें समझ आती है कि औरत की नस्ल से एक पैदा होगा। तब से इंतजार शुरू हो गया। हवा ने समझा शायद ये काइन पैदा हुआ है, ये है, क्योंकि खुदा ने कहा एक मर्द पैदा होगा तब तुम्हारी जो मुशक्कत है खत्म होगी। और ये इंतजार बढ़ता 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 4000 साल ले गया। लोग भूल न जाएं, खुदा की भी बेताबी बढ़ गई। खुदा आपको मुशक्कतों में देखकर खुश नहीं है। आप खुदा से जुदा रहें, वो इस बात से खुश नहीं है। जिस कदर दर्द और तकलीफ में आप वक्त गुजारते हैं उससे ज्यादा तकलीफ में हो। लिखे तेरा नजात दहिंदा ऊँगता नहीं, वो सोता भी नहीं है, उसे चैन नहीं आता कि आप उससे जुदा हैं आदम के गुनाह की वजह से। और वो हर चंद साल बाद जो भी नबी आता, उसकी जैसी भी जिंदगी इस वक्त गुजर रही होती, वो उसके मुंह से नबूवत करवाते और कहते हैं लोगों को याद करा। जब कौम बन इस्राएल से मूसा निकल के आया तो उसे भी खुदा ने इस नबूवत को याद दिलवाया और कहा कि खुदा हमारे भाइयों में से मेरी मानीद एक बर्पा करेगा जो तुम्हारी नजात का बाइस बनेगा। दाऊद अपनी जिंदगी जी रहा था मुश्किल में, अप एंड डाउन में, तो भी ज़बूर 22 के अंदर कहा गया वो जो यस्सु ने हजारों साल बाद कहना था, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इज़ाया आया तो खुदा ने उससे भी लिखवा दिया, मौजूदा हालात जैसे भी थे। उसने कहा देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, यानी खुदा हमारे। ये जिस कदर उम्मीद और नजात की बात मेरे और आपके लिए है, ये खुदा को भी उतना ही मजा दे रही थी। खुदा जानता है कि वक्त नजदीक है, मेरे लोगों के साथ दोबारा ये मेरे पास आएंगे। वो एक पल में भी कर सकता था, लेकिन खुदा का असूल है कि वो गुनाहों की सजा देता है। वो आदल है, वो अदल करता है। ये लंबा इंतजार जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए सिर्फ इतने नहीं, तकरीबन हर नबी ने, यूना ने इसके बारे में नबूवत की। यहाँ तक कि जिक्रिया ने कहा सुन इज़राइल, तेरा खुदावंद आता है, वो जवान गधे बल्कि लाधों के बच्चे पर सवार है। और इससे भी एक बड़ी नबूवत मलाकी ने की। 3 बाब की पहली आयत में लिखा है, हाँ तेरा खुदावंद आएगा, यहोवा आएगा। और लोग हमेशा इंतजार करते रहे। फिर एक वक्त आया, 400 साल तक खुदा ने बात ही नहीं की। 400 साल तक खुदा खामोश रहा और 400 साल के बाद खुदा ने जिक्रिया से बात की। और वो जो मसीह का एलची आने वाला था, जो मसीह से पहले आएगा, उसके मुतल्लिक बात की। फिर अलिशबा को बरकत दी। और फिर वक्त आया, लूका की अंजील पहले बाब की 32 आयत और 35 आयत के मुताबिक एक फरिश्ता कंवारी के पास आया और उससे आके कहा कि देख तुझ पर फजल हुआ है, तू हामला होगी और बेटा को जनेगी। और उस कंवारी मरियम ने कहा, ऐ खुदावंद ये कैसे होगा, क्योंकि मैं आज तक मर्द से वाकिफ नहीं हूं। और लिखा गया कि देख खुदा ताला की रूह तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से मलूदे मुकद्दस वो बच्चा खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। तीमुथियुस 3 बाब 16 आयत फरमाती है, वो महज बेटा ही नहीं, खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ, खुदा रूह है। और तीमुथियुस
लिखा है वो जो जिस्म में जाहिर हुआ। खुदा ने मुकद्दसा मरियम को अपने इस काम के लिए जिस तरह दीगर नबियों को, रसूलों को, फरिश्तों को इस्तेमाल किया, मुकद्दसा मरियम को भी इसी जलाली काम के लिए इस्तेमाल किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आसमान से सितारा को भी, नेचर को इस्तेमाल किया। फरिश्ते गडरियों के पास जा रहे हैं, सितारा मजूसियों तक चला गया। मजूसियों के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अभी 5 मिनट ही में। मजूसियों के लिए जरूरी है, हमें मजूसियों का ज्यादा पता नहीं है, तो प्लीज रिकॉर्ड कीजिएगा। मजूसी बेसिकली फागिर, इससे भी बेहतर तौर पर अगर बोला जाए तो इल्म फल्कियात का इल्म रखने वाले हैं। इनको नजूमी भी कहा जाता था। ये लोग जादूगरी और फालगिरी के शोबा में पाए जाते थे। 600 साल पहले, मसीह से 600 साल पहले ये मुतासर हुए एक शख्स से जिसका नाम दानियल था। अगर आप दानियल की किताब उसका दूसरा बाब पढ़े तो आपको खूबसूरत स्टोरीज नजर आएगी। किस तरह नबूकदनेस्सर बादशाह ने ख्वाब देखा और फिर वो उस ख्वाब से परेशान हुआ, क्योंकि खुदा तैयार कर रहा है मसीह के लिए। और नबूकदनेस्सर ने परेशानी से उठ के कहा और खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया और दानियल ने उसका ख्वाब भी बताया और उसका मतलब भी बताया। तब से नजूमी, मजूसी, फालगीर ना सिर्फ उसके कायल हो गए, बल्कि उसे बादशाह ने तमाम तर नजूमियों का सरदार बना दिया। दानियल की किताब उसके 5 बाब में लिखा है। और वही दानियल मसीह के आने की नबूवत करता है कि वक्त पूरा होगा और आफताबे सदाकत तलू होगा। और वो मजूसी इंतजार कर रहे थे। सल्तनतें कायम होती थी बादशाहों के कायम होने से नहीं, बल्कि नजूमी और फालगीर बताते थे कि ये शख्स इस काबिल है कि इसे बादशाह बनाया जाए। फालगीर एग्जामिन किया करते थे कि कौन शख्स बादशाह बनेगा। उनके कहने से बादशाह कायम होते थे। इसीलिए जब वो हेरोदिस के पास आए, आपको पता होना चाहिए कि हेरोदिस कौन है। इजराइल का याकूब का एक भाई था जिसका नाम, चलो बैठो, ईसाऊ था। ईसाऊ का नाम अदूम रखा गया और हेरोदिस अदूमियों की नस्ल से था। और ये रोमियो को पैसा देकर यहूदियों का बादशाह बना था और ये ओहदा इसे बड़ा पसंद था। ये बादशाही करना चाहता था। लेकिन जब ये सारे हकाइक से बाखबर थे कि मजूसी और नजूमी जिसे बादशाह इंतखाब करते हैं वो हो जाता है। बाबली हुकूमत में भी ऐसा होता, मादी फारसियों की हुकूमत में भी ऐसा होता, यूनानियों की हुकूमत में भी ऐसा होता। और जब यीशु मसीह पैदा हुए उस वक्त रोमियों की हुकूमत थी और वो भी कुछ करते तो नजूमियों को बुलाया करते थे। असल में ये जो मजूसी थे ये फारसी लोग थे, शायद फारस से आए थे, ये मादी और फारसी थे। और जब इन्होंने आकर हेरोदिस से कहा कि बता यहूदियों का बादशाह कहाँ है, तो उसने मजाक नहीं समझा, वो घबरा गया, क्योंकि हर एक जानता था कि कोई आने वाला है। और अपने वक्त पर खुदावंद यीशु मसीह आए। लेकिन क्या उनके आने का महज यही मतलब था कि हम डेकोरेशन करें, नए कपड़े पहने, नए जूते पहने? बच्चों ने बड़ा अच्छा यहाँ पे टैबलो करके भी दिखाया, दूसरों की मदद करें। क्या ये काफी है? अच्छे अच्छे काम करें, क्या ये काफी है? केक लाकर काटें, कई दफा जिद करें। आपको पता है बहुत दफा माँ बाप मसीह का इनकार कर देते हैं। जब बच्चे बड़ी जिद करते हैं नए कपड़ों के लिए, नए जूतों के लिए, तो पेरेंट्स कह देते हैं यार साडा कादा बड़ा दिन। मोस्टली पेरेंट्स कह देते हैं ऐसे बच्चे आते हैं, क्योंकि वो तंग आ जाते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते और इस तरह वो इनकार कर देते हैं कि हमारा क्रिसमस नहीं है। जो इब्लीस चाहता है कि ये लोग ना माने क्रिसमस को। याद रखिएगा कि बाइबल के अंदर क्रिसमस मसीह की पैदाइश का जिक्र है, पर 365 दिनों में से कौन सा दिन है ये नहीं लिखा। ना 25 दिसंबर, ना 1 जनवरी, ना एनीवन।
क्योंकि हर दिन की एक लिमिट है 24 घंटे, पर मसीह का यह दिन 24 घंटे के लिए नहीं है। तो फिर इसकी खास रीजन क्या है? हमें किस तरह क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहिए? तो हमारी दो जिम्मेदारियां हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूं, और बड़े सादा लफ्जों में बाहवाला, और इन्हीं के साथ हम क्लोज कर देंगे क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं। ठीक है जी, ये दो जिम्मेदारियां बड़ी गौर से सुनिएगा। अगर खुदा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, रसूलों ने, नबियों ने, फरिश्तों ने, इवन के आसमान के सितारों ने, फरिश्तों ने जमीन पर आकर जश्न भी मनाया, फिर गडरियों को भेजा, फिर रसूलों को कत्ल तक कर दिया गया। ये खुशखबरी सुनाते सुनाते पहला शहीद स्टीफनस है। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है, ना तो खुदा ये खुशखबरी सुनाएगा, ना फरिश्ते ये खुशखबरी सुनाएंगे, ना आसमान के सितारे, बल्कि ये जिम्मेदारी खुदा ने मुझे और आपको सौंप दी। सबसे पहली बात, अगर कोई क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता है तो वही मुस्तहिक है, क्रिसमस मनाने का हकदार है, जो मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है। क्योंकि वो चरनी, नजरी, हरामकारी और गंदगी और तरह के बुरे कामों के लिए उकसाता रहता है, और उसके कामों की बदबू हमारी जिंदगी में नजर आती है। तो जरूरत है कि ऐसी चरनी के अंदर मसीह को वेलकम किया जाए। जब तक मसीह इस चरनी में नहीं आएगा, यहां से तहरीकी खत्म। लेकिन इसके साथ हमारी दूसरी जिम्मेदारी, पहली तो आपको समझ लग गई, ये मरकस की अंजील 16 बाब की 16 आयत में लिखा है, जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, तो खुदा अपना रूह से दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसी रूह से हम बागे अदन में जुदा हुए थे, और आज मसीह को कबूल करके हमें खुदा ने मिलाप कर लिया। मसीह के जरिया से रूह शख्सी तौर पर हमें मिल जाता है। इसी के लिए मजीद भी हवाला जात मौजूद है, लेकिन हम दूसरी जिम्मेदारी को भी देखते हैं, जो जिसे अरशाद आज़म कहते हैं। अगर कबूल कर लिया तो खुदावंद, हुन मेरी गिरड़ी 20, 25, 30 साल जिंदगी है, 50 साल जिंदगी, तो क्या करूं? तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपके जो दीगर बहन भाई आज भी मसीह से दूर हैं, उन तक इस खुशखबरी के